I'm okay. I'm okay. Not bad. Not bad. I have sent you the request on Facebook For what? आपने for live. It will come in my timeline as well. good, good. That's what I'm saying. जब हाँ शुरू होता है ना तब हाँ करो. मैंने भेजा. You just accept it. Okay, very good, very good. So I just want to tell everybody, audience जो भी है अभी अभी हमारे मोना के साथ मोना जी के साथ आओ and listen to her. She has a very good topic today, which I want all of you ladies to come and listen to her because she really gives very, very good advice. And she's been coming here since last, I would say, 1.5, 2 years all now, I would say. You know, Almost, yeah, almost more than a year. more than a year, yeah. About 2 years now, I think. And the topic today is, आप बताओ. आज हमारा टॉपिक वैसे बहुत इंटरेस्टिंग है. It is postpartum diet, fertility, PCOS, PCOD. Yes. All about women, yeah. Women's issues. Yeah. तो मैं ये कहना चाहती हूँ, these are very important. Last week, एक दो हफ्ते पहले भी हमने women's का कुछ किया था. There was a doctor came in, so we got very good information. And आप भी diet के बारे में देखो ना, diet and physical things, they go together. When you're healing, you need a proper diet, and when you are sick, you need a proper diet. So diet is extremely important. And even if you are postmenopausal, then you have to be also very careful what you're eating. That's the time when you put on a lot of weight. Ladies go after the menopause, they tend to put on some weight in the stomach area and all that. लोग फिर वो जाता भी नहीं है. बड़ी मुश्किल से जाता है. That's the thing. So better to take care of it before you transition. 1-2 साल बीच में होते हैं transition period में, that you can really manage that if you can, And this is the good thing कि अभी लोगों को समझ में आ गया कि ये सारी चीजें हमारी फूड की वजह से हो रही हैं. Whatever we are eating, it is showing. पहले लोग कहीं पर भी अपने डाइट को तो ब्लेम देते ही नहीं थे ना. They are not aware कि फूड कोई प्रॉब्लम दे रहा है. That's the thing. Anyway, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देती हूँ मोनिका जी की. शी इज मोनिका वासुदेवा, हम बोना बुलाते हैं. A talented dietitian, I'm sure you all know that, and who can help with your health goals, of course. And she specializes in weight loss, diabetes, thyroid, and kidney function. अगर आपने डायबिटीज बंद करनी है तो उनके पास जाओ, तो आपको सारी बताएंगे. आपको कोई मंजारों की जरूरत नहीं, किसकी जरूरत नहीं है. You can get rid of everything. And she's that's the best thing to do, because you don't want to be dependent on all these things. And the best part is she believes in a holistic approach and doesn't recommend any supplements. That's the very good thing too, because a lot of people are dependent on all kind of, उनका दराज भरे होते हैं दवाइयाँ, ये भी खाना है, ये भी रात को ये खाना है, सुबह ये खाना है. So there are a lot of things that people have to reduce. I think instead of doing good for you, sometimes they do harm. Interaction नहीं करना, ये ले रहे हो तो ये नहीं लेना, these things they do that. So Monica, she has an impressive track record with over 30,000 clients who have trusted her expertise. And if you're interested, she can provide you with more information about her services, and just let her know. And today, like I said, we're going to be talking about postmenopausal fertility and all these issues. A lot of women, they have these problems, and then all of a sudden they have, when they do the जो कराते हैं age, what do you call that, like they wait too long sometime to have children. I think that's another problem. Many people definitely, not because I would say पहले ज़माने में देखो, the girls used to be marrying very, I mean, I'm not saying that you should, very young, meaning 18, 19, 20. By the time they're 25, 20, 30 तक 2-3 उनके बच्चे होते हैं. By the time they're 30, they already have 2-3 kids, and by the time they're 50, the kids are grown up. Actually, by the time 50s, they feel themselves that they have touched the very mature age. They are mature now. Not only mature, they are old now. Right. Which is not a good thing, because आजकल के ज़माने में 50s तो कुछ भी नहीं है. People are enjoying. कुछ भी नहीं है, 50s नहीं है. Till the time you are taking care of your body, you are young till 70s, till 75, even 80. It is all about your diet. Exactly. How you are taking yourself. That is the main thing. Yes, I agree. It depends on how you take care of yourself, and physically थोड़ा active तो होना चाहिए, you have to be active. Physically be, mentally be, because a lot of people, they think a lot of stress, lot of burdens in the mind.
lot of anxiety. Even it gives the aging and so many health issues, especially women related PCOS, PCOD, and fertility issues. It all depend upon stress और anxiety. क्योंकि हम stress anxiety तो हम लेते हैं कि ये टेंशन ले रही है, बस थोड़ी देर की टेंशन है. थोड़ी देर की टेंशन कब लिंगर ऑन हो जाती है उसको कट ऑफ करना बहुत जरूरी है. I agree. That's the thing. And then also what happens is the mindset भी तो होता है ना, कईयों का mindset होता है कि भाई kids are this thing, हमें इतनी एज होगी, हम like they give up. I think now the generation is changed. Generation is totally changed. Yes. Things are changed. So I agree. I think so. And women are taking better care of themselves now, I think. Yes. Everyone should take care of yourself at any age. Right. That's true. Till the time you are in this earth, this is a gift. Enjoy it. You're right. I agree. And then that's good morning. Kamlesh ji, how are you? Okay. I agree. And women, they tend to ignore themselves. अपने आप को, they think कि भाई पहले बच्चे आते हैं, फिर फैमिली आएगी, फिर ये आएगा, वो आएगा. I think one should also prioritize yourself, Yes. One should go with flow. अब बच्चे हैं, उनको उड़ना है, उनको जाना है, और अगर वो बहुत ज्यादा आपका ध्यान दे रहे हैं, that is fine. जिसके पास नहीं टाइम, even that is fine. Be a giver. आप उनके साथ लगे रहो. Correct. और पाने की उम्मीद छोड़ दोगे ना, तो आप अपने आप को ज्यादा अच्छा ट्रीट करोगे, हेल्दी फील करोगे. Yeah, that is true. If you don't do that, then how you gonna progress? अगर आपने आपको प्रायोरिटी तो का हरकत करते रहोगे सबके लिए, then you kind of lose interest. कि अगर सबके लिए करना है तो उसको दिल पर मत रखो, कर लो, क्या टेंशन है. अगर आपके पास है तभी तो आप वो सब कर रहे हो ना. If your nature is like that, you want to make good food, अच्छा खाना बनाना आता है आपको, ये सब आता है, तो अच्छी बात है, आप सबको खिलाओ, पर अपने लिए भी ध्यान दो. आपके भी कुछ फेवरेट चीजें हैं, एंजॉय देम. Yeah, that is true. I agree. One should do that. And also तो फर्टिलिटी की, जैसे आपने कहा है पोस्ट मेनोपॉजल, तो कई लेडीज मैंने देखी हैं, they get married late and they have the children late. So and then by that time the body is like I said, पहले young लड़कियां married body, after a certain time the like it's not, fertility gets less and less, more or less fertile. Definitely ovulation में टाइम लगना शुरू हो जाता है, बिकॉज आपकी बॉडी है, हमारी बॉडी एक सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है. आपके एक एज फैक्टर जब हो जाता है तो ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम आती है, बॉडी के हार्मोन्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, बिकॉज उसमें फिर समटाइम्स मेल हार्मोन ज्यादा बनता है, तो वो सारी चीजें शुरुआत हो जाती है. तो हर बंदे को तो नहीं होता, पर फर्टिलिटी की इशू विद एज हो जाता है, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ एज. पर कुछ लोगों को पीसो, और आजकल जैसे स्नैक्स वगैरह, बहुत ज्यादा फास्ट फूड यूज हो रहा है, उस वजह से भी हार्मोन्स में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल इतना डिस्टर्ब है, बच्चे लेट सो रहे हैं, लेट उठ रहे हैं, एवरीथिंग मैटर्स. पीसीओएस पीसीओडी के बहुत केसेस बढ़ते जा रहे हैं. PCOS के थोड़ा बताओ उसके बारे में. हाउ डज दैट डेवलप? इसका एक तो लाइफस्टाइल, हार्मोन्स, और मेल हार्मोन का ज्यादा, एंड्रोजन का ज्यादा बढ़ना, ठीक है, ये सारे पीसीओएस की वजह से है. दूसरा, जब आपकी बॉडी में इंसुलिन ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उससे आपको शुगर के चांसेस होते हैं. जब टिल द टाइम आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम चल रही है, इट इज नॉट परमानेंट, क्योंकि आजकल डॉक्टर्स पीसीओएस को सप्रेस करने के लिए मेटफॉर्मिन देना शुरू हो गए हैं, कि आपकी शुगर हम नॉर्मल करते हैं, क्योंकि अगर आपके हार्मोन्स इनबैलेंस है तो बॉडी में शुगर लेवल बढ़ रहा है, तो मेटफॉर्मिन दे रहे हैं. अब मेरे पास जो केसेस आ रहे हैं, मैं उनको क्या करती हूँ कि आपको मेटफॉर्मिन या आपको पीसीओएस के भी फर्टिलिटी रिलेटेड मेडिसिन लेनी ही नहीं है. लेट्स चेंज द लाइफस्टाइल. जो मिस्टेक्स आप कर रहे थे उसको हम बदलते हैं. सो मेनी पीपल दे से दैट दे ऑलवेज ईट हेल्दी, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका तो कोई आदत भी नहीं है चाउमीन खाने की या मैदा ज्यादा थे, but still they are facing the PCOS. बट कहीं ना कहीं यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. और जैसे स्लीप फैक्टर, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारा का सारा जो ब्रेन है ना, वो वुमेन की बॉडी यूट्रस के साथ सब चीजें अटैच्ड है.
Wow. पीसफुल लाइफ का होना बहुत जरूरी है। फाइंड पीस। हर बंदे के पास आपको पीस नहीं है। डिजायर्स बहुत हैं, आई नो एवरीवन। बच्चों का स्ट्रेस होता है, स्टडीज का स्ट्रेस होता है, आगे बढ़ने का स्ट्रेस होता है, सब कनेक्टेड है। पर मेन है लाइफस्टाइल। और मेरे पास पीसीओएस पीसीओडी के इतने केसेस। अच्छा, इसका नुकसान क्या हो जाता है? वेट पुट ऑन होना शुरू हो जाता है। अच्छा, जो आज अभी के जो आज से 5 साल पीछे जाऊं और अभी जाऊं तो मुझे एक चीज समझ में आ गया कि जो अभी के बच्चे हैं ना, दे आर वेरी स्मार्ट। उनको पता चल गया है कि जब उनको पीसीओएस है, उनके पीरियड्स 2-2 महीने बाद आ रहे हैं, 3 महीने बाद आएंगे, हार्मोन्स इनबैलेंस है और वेट बढ़ रहा है, वेट बढ़ सकता है, वो अपने आप ही डाइट शुरू कर देते हैं। बट देयर डाइट इज सो रॉन्ग, वो खाते ही नहीं है। दे स्टार्व। Mm-hmm. क्योंकि उनको पता है कि खाएंगे तो हमारा बॉडी में वेट बढ़ना। दे ट्राई टू मैनेज। बट आई बिलीव कि अगर आपका कोई भी हेल्थ इश्यू है, फर्स्ट ट्राई टू चेंज विद द डाइटिशियन। और फर्टिलिटी की मेडिसिन जब लेते हो तो वो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम देनी शुरू हो जाती है। Right. इट स्टार्ट इफेक्टिंग योर फर्टिलिटी। That is true because future and plus they become very PCOS में थोड़ा मेल हार्मोन ज़्यादा हो जाते हैं बॉडी में वुमेन के लिए ना. मेल हार्मोन बढ़ That is why they become more हेयर ग्रोथ हो जाती है थोड़ी. हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है, चिन पर बाल आ जाते हैं। Yeah. तो पर ये भी है। फिर इसका क्या है, ये चीजें इट इज वेरी इजी टू डिस्कस। पर जो फेस कलर आता है ना, वुमेन नेवर लाइक दिस थिंग्स। अंदर से तो यू आर वुमेन, हाउ कैन यू एक्सेप्ट दिस I बियर्ड, know. हाउ कैन यू एक्सेप्ट दिस। तो It is, अंदर से फिर उनका अंदर से चिड़चिड़ापन, मूड बिहेवियर, मूड स्विंग्स, इसीलिए शुरुआत हो जाती है। yeah, that's true. That is true. And also फिर इनके इसकी ट्रीटमेंट भी कराओ. You know, that's also a big headache. अनदर थिंग, इसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। पर फर्टिलिटी की मेडिसिन से क्या होता है, जब डॉक्टर शुरू कराते हैं तो उसके 9 या 10 दिन के बाद पीरियड्स आ जाते हैं। अच्छा. बट दैट इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। वो भी बहुत ज्यादा टेम्परेरी है। तो पर आई हैव गिवन 100% रिजल्ट्स इन पीसीओएस। मेरे पास अभी रिसेंटली कुछ मैरिड लेडीज थी, दे वर सफरिंग विद द सेम इशू पीसीओएस। दे हैव स्टार्टेड टेकिंग द डाइट प्लान फ्रॉम मी। 2 या 3 महीने का वो मुझे ज्वाइन करती हैं। इस टाइम मैं इन तीनों को प्रेगनेंसी डाइट दे रही हूँ, क्योंकि तीनों ने कंसीव कर लिया है। अच्छा. हाँ, They got तो pregnant. They got pregnant. हाँ, अब PCOS. बिकॉज अच्छी डाइट फर्टिलिटी को इफेक्ट करती है। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि जो आपने बचपन में अपनी मम्मी के मुंह से सुना है, अच्छा खाना खाओ, प्रॉब्लम होगी, बड़े होके मुश्किल पड़ेगी, ये है, वो सही बोलते थे। दे वर नॉट रॉन्ग। अच्छे फूड की वैल्यू है और वैल्यू हमेशा ही रहती है। I know. Also, yeah. Good morning, Ji. Good morning. Thanks for joining, everybody. Bring your friends along because it's a very important subject for everyone. And also, you can share this with your, you can ask your friends to join and you can share afterwards too. Excuse me. मैंने और भी कुछ पूछना था कि so they were not getting pregnant because of the PCOS और वैसे ही उनकी प्रॉब्लम थी कुछ. नहीं, उनके उन ज्वाइन तो उन्होंने इसी को रिजॉल्व करने के लिए करा था कि वी हर्ड कि यू हैव गिवन मेनी रिजल्ट्स इन पीसीओएस एंड पीसीओडी। तो दे ज्वाइंट में, किसी ने मार्च में ज्वाइन करा था, किसी ने अप्रैल में। तो मैं तो हमेशा सबको बोलती हूँ कि अगर ऐसा इश्यू है तो यू वी नीड सम टाइम। मैं झूठी होप्स नहीं देती हूँ कि 1 मंथ में ही रिजल्ट आ जाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। राइट. हाँ, आ भी जाता है। अगर आप, हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ ही आपके पीरियड्स वैसे ही आने वाले हों और आपने डाइट शुरू करी और आ गया और आप सोचो कि मेरी डाइट की वजह से 1 मंथ में आया। दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एवरी डाइट नीड एटलीस्ट 40 to 45 days टू गिव चेंजेस टू योर बॉडी। तो उसके बाद जब भी मेरे किसी क्लाइंट को वो शुरू में बोल देता है कि मेरे पीरियड्स आ गए, आई एम हैप्पी विद दैट, तो अगर तो उसका पैकेज होता है, आई मेक श्योर कि नेक्स्ट मंथ भी साइकिल सही रहना चाहिए। जब रहता है तो फिर पता चलता है कि मेरे डाइट का रिजल्ट आया। तो ये मतलब this PCOS is not really hereditary, is acquired. होता है सम पेरेंट्स। अगर मैं से इट इज नॉट 100%, नॉट 100%। मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स हैं, मैं हमेशा पूछती हूँ कि आपकी फैमिली में मदर को या किसी को है। दे नेवर एक्सपीरियंस्ड दिस थिंग, बट इट इज। It is there. It is there. They probably didn't know क्या चीज़ है. PCOS, I mean,
इंडिया में क्या वर्ड होगा इसके लिए? पीसीओ, यहाँ पे तो पीसीओएस कहते हैं। व्हाट इज इट कॉल्ड इन इंडियन, हिंदी में या इंडियन? यही बोला जाता है, ओवरी सिस्ट है दिस वही इज। तो दैट्स द थिंग। सो सो यू थिंक बेसिकली सम पीपल आर, उनको इनहेरिटेड होती है, एंड सम पीपल के एक्वायर्ड बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। सम लाइफस्टाइल की वजह से ये कोविड के बाद केसेस ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड बच्चों ने मोस्टली उनका टाइम डिफरेंस, वर्क फ्रॉम होम बहुत शुरू हुआ, लोग लेट सोते हैं, लेट नाइट काम, ऑनलाइन बहुत ज्यादा चीजें चल पड़ी हैं, तो लेट नाइट भी बहुत ज्यादा सोते हैं कुछ लोग, तो उस वजह से थोड़ा और भी बढ़ा है। क्योंकि लाइफ का, हमारी लाइफ में बस खाना नहीं, सोना, उठना, बैठना, एवरीथिंग मैटर्स। दैट्स ट्रू। दैट इज तो आजकल बच्चे, अभी बड़ी स्लीप्स लेट एंड टीवी देख रहा है, कोई ये कर रहा है, लाइक टीवी देख रहा है, फिर उठने का टाइम 10 बजे है, 12 बजे है, फिर नाश्ते का टाइम भी उसी टाइम शुरू हो जाता है। इट कॉज एक्ने, सो मेनी पिंपल्स, पिगमेंटेशन, डार्क आईज, तो सब चीजें शुरुआत हो जाती है। हाँ, लॉट ऑफ पीपल आई सीन के उनके ना बड़े डार्क शेडोज वगैरह होते हैं आईज के। बहुत ज्यादा हो जाते हैं आइस के, ये लेट सोने की वजह से शुरू हो जाती है, तो इरेगुलर पीरियड्स भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये हार्मोन्स हैं। हार्मोन्स को आप जितना अच्छा लाइफस्टाइल जीते हो, योगा करो, थोड़ा सा ब्रीथ इन एक्सरसाइज, एस्ट्रोजन लेवल अपना बढ़ाओ, हम्म। जितना आप अपना एस्ट्रोजन लेवल बढ़ाते हो उतना आपको बेनिफिट होता है। अच्छा अच्छा, ओके, दैट्स गुड थिंग टू नो। और एस्ट्रोजन लेवल एक दो योगा पोजेस से भी हो जाता है, जैसे ब्रिज पोज, इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द टू इंक्रीज द एस्ट्रोजन लेवल, और हैप्पीनेस देता है। टू इंक्रीज द एस्ट्रोजन लेवल वन शुड हैव वन बनाना एज सुन यू वेक अप, बिकॉज इट इज अ हैप्पी फ्रूट। आप उठते हो, आपको बनाना खाते हो, इससे भी आपके हार्मोन्स बैलेंस आज होते मैंने अभी सुबह उठ के मैंने बनाना ही, बिलीव इट और नॉट, हैं। आज दिस वेरी हेल्दी, गौरव वेरी I had हेल्दी a, फ्रूट। I was feeling hungry, मैं क्या, usually I like to take banana in the morning, मैं वही लेती हूँ अगर लूँ तो। हाँ, एनर्जी लेवल बना रहता है, हाँ, तो मैंने लिया, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। I had half in the morning that I had my tea, उसके बाद में हाफ मैंने और खाया अभी आने से पहले, प्रोग्राम आने से पहले। So अच्छा। how about walking या exercise? वो तो walking Walking is always very helpful. Pumpkin seeds, one should add pumpkin seeds. It increase the estrogen level. But melons, जो melon seeds होते हैं वो रिवर्स करता है एस्ट्रोजन का। तो never think कि pumpkin और melon दोनों भाई बहन है, no, they are not. Okay. तो pumpkin seeds increases the estrogen level. आप कोई भी वुमेन अगर उसे लगातार 40-45 डेज खा रही है, उसको, उसमें फेमिनिज्म बढ़ता है। melon seed से, pumpkin seed से। पंपकिन सीड से यू फील मोर, यू आर अ वुमेन, आपकी जो बिहेवियर में, स्किन में, बालों में, और ओवरऑल यू विल स्टार्ट सीइंग द डिफरेंस। पंपकिन सीड्स अच्छे हैं, बनाना अच्छा है, ब्रिज पोज अच्छा है, ये सारी चीजें आपके लिए अच्छा है। योगा के लिए। जो उनसे भी सबसे अच्छी चीज है टू कीप योर यूट्रस हेल्दी, वो है, वो मेरा सीक्रेट है, आज आपके शो में बता देती हूँ। आपके शो में बताती हूँ, जो बहुत पता भी होगा, हमें भी तो बड़ों से ही पता चला है, आपको भी कहीं पता होगा। हरी मूंग की जो दाल होती है जिसके स्प्राउट्स निकलते हैं, अच्छा, हरी, ये वाली जो हरी मूंग दाल, हाँ, ओके ओके। ये जो दाल है ना, इट इज फॉर वुमेन यूट्रस, बेस्ट मेडिसिन। और इसको ये नहीं कि आप दाल बनाकर खा रहे हो, नॉट ओनली दिस, यू नीड टू सॉटे इट, इसको रोस्ट कर लो, रोस्ट करने के बाद इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लो, ठीक ओके, है। वॉश पहले करो, फिर ड्राई करो, फिर रोस्ट करो, फिर ग्राइंड करो। इसका रूटीन में आप पंपकिन के साथ मिक्स करके 1 चम्मच ले रहे हो, तो यूट्रस से रिलेटेड कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आ सकती। लाइक क्या प्रॉब्लम हो सकती है? लेट्स से यूट्रस की क्या क्या? यूट्रस की कितनी ही प्रॉब्लम्स हैं, ओवरीज में प्रॉब्लम आ जाती है, फाइब्रॉइड्स आ जाता है, सिस्ट आते हैं, कितना कुछ होता है। ये दाल यूट्रस को हेल्दी रखता है, सारा इसको मतलब डिटॉक्स करके रखता है। हाँ, फाइब्रॉइड्स कैसे, किस वाई कैसे होते हैं डेवलप फाइब्रॉइड्स? फाइब्रॉइड्स बहुत रीजन से डेवलप होते हैं, ये तो ये भी लाइफस्टाइल, खाना पीना है। दूसरा, बहुत से लोग हैं वो खाते हैं, पीते हैं,
और वॉक नहीं ज्यादा करते, डिनर के बाद बस वहीं का वहीं बैठ जाते हैं और कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हमारी। आप तो हमें लगता है कि जो हमारी एक्सरसाइज है बस हमारी बाहर की मसल्स को हिला रही है, एक्सरसाइज हमारी इनर मसल्स को भी हिलाती है। हम्म। हमारी जब जो हमें सांस कैसे चढ़ रहा है वो हमारी बाहर की मसल से थोड़ी सांस चढ़ रहा है। हमारे ऑर्गन्स, जैसे अब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, आपको सांस चढ़ता है, वो क्यों चढ़ता है? क्योंकि आपका जो हार्ट है वो उतनी फास्ट उसको काम करना पड़ रहा है, वो ब्लड को पंप करता जा रहा है फटाफट। तो ऑर्गन्स तो हिल रहे हैं ना, किडनी भी फटाफट ब्लड को प्यूरिफाई करती जा रही है। तो दिस इज हाउ एक्सरसाइज हेल्प। क्यों दुनिया बोलती है कि एक्सरसाइज इज मस्ट? मतलब एक्सरसाइज के एवरीथिंग के लिए अच्छा है, नॉट ओनली। एवरीथिंग के लिए अच्छा है। हमें बस लगता है कि हमारी बाजू थक गई, बहुत एक्सरसाइज करी। वो बाजू वाजू कुछ नहीं थकी है, वो अंदर से आपकी जो एनर्जी है वो आपने यूटिलाइज करी अपनी एनर्जी, वो ड्रेन आउट हुई है। अब आप फिर उसको रिजर्व करो, फिर यूज करो, फिर खाओ पियो, फिर अच्छा। या मतलब कहते हैं कि खाने पीने के बाद एटलीस्ट 15 मिनट या 10 मिनट वॉक करो। बहुत जरूरी है, एवरी 200 टाइम स्टेप एवरी तो टाइम यू जरूरी ईट है। समथिंग, एवरी मील के बाद एटलीस्ट 10 मिनट्स 15 मिनट्स वॉक करो। सो ड्यूरिंग द डे अगर 3 बारी कुछ कुछ खाया, 3 बारी करो, 10 45 मिनट्स। आई मीन डिपेंड्स ऑन हो हाउ। जाता है, हो जाता है जितना हो सकता है। मैं तो जैसे सबको बोलती हूँ, मैं देयर इज नो एनी एक्सक्यूज। जिसको वॉक करना है, जैसे अभी इंडिया में इतनी बारिशें हो रही हैं, जिसको वॉक करना है, आपका घर छोटा है बड़ा है पर इतनी स्पेस तो है कि आप चल पा रहे हो, उतनी अपने एक सर्कल बना लो कि मैं यहाँ चलूंगा। ट्रेडमिल आजकल बहुत लोग घर पे रखते हैं, उसमें टाइम सेट कर लो कि 25 to 30 मिनट्स रूटीन में करनी है। और बाहर जाना हर मौसम में किसी भी कंट्री में इजी नहीं है। चाहे आप दुनिया का कोई भी देश लगा लो, अभी आपके वहां पर पता नहीं कैसा वेदर रहता है, विंटर में स्नोफॉल होती है हाँ नहीं होती है। होती है। तो फिर अपने घर में पहले ही सारी फैसिलिटीज रखो कि आपको डम होके बैठना नहीं है। डोंट लिव लुक आउट द वेदर। हम्म। जितना हो सकता है, होम इज द ओनली प्लेस जहां आप दुनिया के सारे काम कर सकते हो पूरे 12 महीने। हाँ ये तो है। दैट इज टू, यू कैन देखो जिम बड़ी सब जगह जगह में जिम है, ठीक है ना। मतलब दुनिया में जिम है, जिम के बहुत बेनिफिट्स हैं। मैं जिम का भी अभी बताना चाहूंगी। पहले मैं लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि इफ यू आर ओवरवेट, अगर आप 100+ हो या 90+ हो, तब आप जिम में जाओगे ना तो वो वेस्टेज है। क्योंकि वहां आप ज्यादा से ज्यादा कार्डियोस करो कि आपका वेट नीचे आए। उसके बाद आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, जिस वजह से आपकी बॉडी में शेप लेनी शुरू हो जाए। पर जिन लड़कियों का पीसीओएस है, पीसीओडी है, फर्टिलिटी इश्यूज हैं और मेनोपॉज चल रहा है, दैट टाइम जिम इज समथिंग यू शुड स्टार्ट। क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी आपके यूट्रस को हेल्दी करती है। वो तो बिल्कुल ठीक बोला आपने। मैं जब अभी मैंने भी थोड़ा ब्रेक लिया हुआ, आई डोंट नो व्हाई आई गोना स्टार्ट गोइंग अगेन बिकॉज माय लाइफस्टाइल, आई एम बीइंग वेरी बिजी। कोई ना कोई दुनिया के देखो, सारी दुनिया के एक्सक्यूज आ जाते हैं। अगर तुम्हें हाँ, कुछ करना है, जिम जाना है ना, ओहो आज मैंने ये करना है, मेरी अपॉइंटमेंट है, आज मैंने ये बाल बहुत कटाना बहुत मन है। बनाना पड़ता है जिम जाने बहुत ही के लिए। हाँ, मैंने पहले ऐसे किया था अपने आप, मेरे को ऐसे कि मैंने 9 o'clock इन द मॉर्निंग मैंने अपनी जो होता है ना ये ट्रेनर, ट्रेनिंग जो करते हैं जिम में, जो हम्म, ट्रेनिंग उनके साथ, ट्रेनर के साथ मैंने अपॉइंटमेंट रखती हूँ 9 o'clock। अच्छा अच्छा। तो मैं कहा आई हैव टू गेट अप एंड गो बिकॉज मैंने पैसे देने हैं उसको। सो देन दैट्स हाउ आई हाँ, यूज्ड टू गो, बिकॉज अदरवाइज आई यूज्ड टू बी लेजी। नहीं नहीं मैं ये क्लास करनी है, बाद में कर लूंगी। एंड आई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ, आई लाइक टू डू, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ डांसिंग म्यूजिक। तो उनका क्लास होता है जुम्बा, उसमें इंडियन म्यूजिक भी लगाते हैं। अच्छा। That was so good. So now I keep on saying I'm gonna start, but I haven't started yet. लेकिन I'm thinking this week and next week जाकर Monday को, next Monday I'm off, तो I'm gonna जरूर स्टार्ट करो, start. जरूर स्टार्ट करो। रीजन है कि आपको अपने आप के लिए बहुत अच्छा है जो आप जिम में अपने अपने लिए टाइम देते हो, जो उससे थोड़ा पसीना आता है, फिर कितने उसके बाद साल जो मैंने शावर लेते हैं। मैंने कितने साल I've been doing it since my daughter was small baby। तो उसको मैं डे केयर मतलब उनका होती थी ना, बेबी सिटर बैठी थी उनके पास हाँ, छोड़ती थी उसको, 1 2 साल की थी तब के, उससे पहले की मैं जा रही हूँ। सो आई बीन गोइंग ऑल माई लाइफ एंड विद ट्रेनर, कभी ट्रेनर भी कभी रख लेती थी, नो लाइक आई टू हैव आफ्टर फ्यू। अब कोविड हुआ है तो उसका उसका थोड़ा बंद हो गया उसके बाद में। कोविड के बाद बहुत लोगों की लाइफ में तो ये चेंजेस मेरा, आए। अब उसके बाद में मेरा थोड़ा आई हैव टू resume what I was doing too, that's the thing। And also I'm having this program, plus फिर
और भी बड़ी चीज़ें होती हैं, तो इस करके थोड़ा डिले हो गया, लेकिन मैं वैसे कह रही हूँ आई एम डेफिनेटली गोना स्टार्ट। पर मेरे घर में भी क्या कहते हैं वो ट्रेडमिल भी है, सो आई कैन ऑल्सो। ट्रेडमिल नहीं, ट्रेडमिल इतना नहीं करो आप, स्ट्रेंथ नीलम लांबा जी ट्रेनिंग। वेरी गुड इंस्पिरेशन। अभी जिम की बात कर रहे हैं तो नीलम लांबा जी, देखो ये नीलम जी आप जिम में ही देखा करो, लेकिन अपना हमारा प्रोग्राम रोज देखा करो, जब भी होता है वेडनेसडे एंड फ्राइडेज को। तो जिम में सिर्फ कर रही है, यू कैन डू इन द जिम टू। आई मीन sometime Kamlesh ji is at she also goes for therapy, so sometimes she sees over there program वो को। ठीक है, कमलेश जी wasn't fit लास्ट हमारी जब बात हुई थी, हाउ इज शी नाउ? She's better now, she's better, अच्छा। much better। तो वही मैं कह रही हूँ जिम में भी देखो, जैसे मैं करती थी 12 मिल, वहाँ पे तुम्हारे सामने टीवी सा कुछ होता है ना, फोन रख लो तो अपना प्रोग्राम देख लो, यू कैन सी व्हाटएवर यू वांट। सो एंड देन दैट्स द वे यू पास द टाइम। आई यूज्ड टू वॉच अ प्रोग्राम ऑन द ट्रेडमिल, आधे घंटे का था या कितने का, उतना वो प्रोग्राम देखो, उतना ट्रेडमिल करी जाओ, हम्म। घंटा पास हो गया। So that's, and then I had a trainer and I had to do my classes. I never liked too much of yoga, I don't know why, but the other thing I used to like calisthenics, वो या something else, योगा का मुझे हाँ, जो I जिसमें थोड़ी मूवमेंट हो, यू लाइक दोज थिंग्स, दैट इज फाइन एज वेल। like Zumba, मैं करती थी काफी, so that's what I like to do, Zumba की क्लास में join करो, so you actually all your body parts is moving with the music, you know, so it's fun। तो ये सब चीजें मैं देखती हूँ अब आजकल इंडिया में भी बहुत एवरीबडी इज गोइंग टू द इंडिया में तो बहुत ज्यादा जिम। हर चीज ओवर है। मैंने देखा था, मैं when I went and I saw इतने सारे जिम everywhere, so many gyms out। आपका जो जो आपके वहां पर जिम है, उनके साथ सबकी ब्रांचेस इंडिया में है। एनी टाइम फिटनेस है, एवरीडे फिटनेस है, यहाँ पर सारी ब्रांचेस इंडिया में अवेलेबल है। Yeah, कमलेश जी कह रही हैं she's much better, yeah she's back, she's almost back to normal। थोड़ी weakness तो होती है if you are not well for a while, you know, हाँ बिल्कुल। that takes the thing, but women's की जैसे I'm glad that you're bringing these things up। lot of people पहले ज़माने में या पहले उनको होती थी, वो किसको कहते ही नहीं थे बेचारी, they used to suffer in the house, nobody would listen to them कि ये हो रहा है वो हो रहा है, कौन सुनता था। नो वन थिंक्स, पहले देखो बिफोर पीरियड्स, आफ्टर डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, हार्मोन्स आर सो इम्बैलेंस्ड, एस्ट्रोजन इतना गिर चुका होता है कि जल्दी रोना आ जाता है, चेंजेस, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। तो बट नाउअडेज एवरीवन अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि डिलीवरी के बाद आपका मूड चेंज होता है, आपको अच्छा नहीं लगता बहुत सी चीजें। पर आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू सोशल मीडिया कि उन लोगों को उसने बहुत अवेयरनेस बढ़ाई है बहुत चीजों में। तो पहले लोगों को नहीं पता आता था, किसी ने आफ्टर डिलीवरी आपको जरा सा जवाब दे देना या कुछ है तो वो बंदा बुरा बन जाता था। पर आज लोग पीपल, उनको पता है कि ये टाइम आता है, ये फेज आता है, तो पीपल दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग सो मेनी थिंग्स। और डॉक्टर्स भी उसी हिसाब से आपको रिलैक्सली मेडिसिन भी लिख कर देते हैं कि आप अपना ये जो थोड़े 40 डेज हैं हेल्दी वे में निकालो। ऐसे ये ट्रांजिशन होती है वुमेन्स बॉडी, like you're having your periods every month and this and that, फिर टाइम आता है then it starts getting less, so that's the menopausal से जैसे प्री मेनोपॉजन कहते हैं उसको, राइट। तो उसमें डाइट का क्या, या व्हाट शुड बी, नॉट दैट I'm just asking for my somebody I know। उसमें भी डाइट का बहुत ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि यू शुड टेक योर सप्लीमेंट्स, ठीक है। विटामिन डी लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज कि विटामिन डी अगर आपका नॉर्मल है तो आपका थायराइड वगैरह भी नॉर्मल होने के चांसेस है। नहीं तो बहुत चांसेस में ऐसा आता है कि विटामिन डी अगर लो हो गया है तो थायराइड आ जाता है, और थायराइड आपको बहुत अच्छे से पता है कि वो हार्मोनल इशू है। दूसरा, पेरी मेनोपॉज के टाइम आपको अपना आयरन लेवल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबको पता है कि कभी अगर पीरियड्स का फ्लो इतना ज्यादा होता है कि आपकी बॉडी में उतना उतना बन नहीं रहा होता ब्लड जितना निकल रहा है, तो आयरन लेना बहुत जरूरी है। आयरन को अब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी लेना बहुत जरूरी है। ओवरऑल सप्लीमेंट्स के सिर पर ही पेरीमेनोपॉज टिका हुआ है। एंड दैट टाइम मैं सबको बोलती हूँ कि अगर आपने वेट रिड्यूस करना है, ट्राई टू रिड्यूस बिफोर यू टच योर 40s। उसके बाद जो आपका पेरीमेनोपॉज का टाइम आता है उसमें वेट रिडक्शन बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस नहीं होते हैं। और मेरे हिसाब से डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आपकी जो थोड़ी डाइट है वो आपको हेल्प नहीं करेगी।
अकॉर्डिंग टू मी पेरीमेनोपॉज के टाइम आपको अपनी प्लेटर बहुत अच्छा रखना चाहिए, जिसमें दाल्स भी होनी चाहिए, स्पिनच भी आपके रूटीन में होना चाहिए, पनीर भी होना चाहिए। इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन, फिश एंड चिकन भी यू शुड ईट। कि आप जितना हो सके यू कैन डिजर्व योर एनर्जी। यू नेवर नो कि आपके नेक्स्ट पीरियड 2 महीने के बाद आ रहे हैं, या हो सकता ना भी आ रहे हो, ना ही आएंगे। तो पर वो बॉडी का बीपी अपना रूटीन में चेक करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सो मेनी लेडीज दे फेस द हॉट फ्लैशेस। Yeah. लोग बहुत इजीली बोल देते हैं हॉट फ्लैशेस हो जाता है, मुझे रात को होते। डू दे नो व्हाट इज हॉट फ्लैशेस? हॉट फ्लैशेस का मतलब है बीपी अप डाउन हो रहा है आपका। इट इज नॉट मेंटेन्ड। अप एंड टेक डाउन इट हो रहा है ना। सीरियसली। आप हाँ, अप हो रहा है मेरे ख्याल, आप पे तब भी आप होता है तो तब भी you get flashes, you get like हाँ, कई बार एकदम से डाउन भी चला जाता है, यू नेवर नो। तो हॉट फ्लैशेस लो, सीरियसली लो। टू मेंटेन दिस ड्रिंक लेमन वाटर। वो तो मैंने बोल दिया, इसलिए आपको आयरन लोगे तो लेमन वाटर लेना पड़ेगा या विटामिन सी लेना पड़ेगा। ऑरेंजेस खाओ बहुत अच्छे से। और पेरीमेनोपॉज बहुत इजी हो जाता है अगर आपकी डाइट अच्छी है। ये भी आपको मैं बता देती हूँ, पेरीमेनोपॉज जो भी है, ये हमारी मदर्स को भी, हमारे पेरेंट्स को भी आता था। आज से 20-25 साल पहले लेडीज को भी आता था। वो बॉदर नहीं करती थी, उनको नहीं प्रॉब्लम उतना आता था, जिसने अच्छी डाइट ली होती थी। ये ये किस चीज ये कमलेश जी लिख रही हैं। हेलो जी एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस प्रोग्राम वंस अगेन। दिस इज मोना जी राइट हियर विद मी। या गुड। मैंने ये पूछा था, कमलेश जी आस्किंग विटामिन D3 गुड? हाँ, बिल्कुल गुड है। विटामिन D3 विद क्ले, ग्रेप? विद ग्रेप्स, या विटामिन D3 इज गुड। अच्छा, विद ग्रेप्स, अच्छा। क्योंकि ब्लैक ग्रेप्स जो होते हैं ना, जैसे विटामिन D3 आपने ले लिया है, तो क्ले पर चांसेस होते हैं कि कॉन्स्टिपेशन या ये सब रहता है। तो अगर आप ग्रेप्स ले रहे हो साथ में, तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। तो उससे शुगर नहीं बनती ग्रेप्स के साथ? मैंने सुना है कि ग्रेप्स दे हैव लॉट ऑफ शुगर। ब्लैक ग्रेप्स के साथ नहीं बनती। अच्छा, नहीं होता इतना शुगर? नहीं, ब्लैक ग्रेप्स के साथ नहीं होती। Yeah, I वाइट येलो वालों के साथ होती है, वो मीठे ज्यादा होते हैं। ब्लैक्स आर नॉट स्वीट। Oh, ना। okay, हम मिलते हैं यहाँ पर तो मैं फिर I try to I like grapes. I bring it for the kids and all that, but black next time मैं black try करूँगी। ब्लैक अच्छे होते हैं, ब्लैक बहुत अच्छे होते हैं। और वैसे भी एंटीऑक्सीडेंट्स भी ज्यादा खाने चाहिए जिनको शुगर होता है। उसमें भी जैसे स्ट्रॉबेरीज में बिल्कुल शुगर नहीं होती, These are good. ब्लूबेरीज में बिल्कुल भी नहीं होती, ग्रीन एप्पल में बिल्कुल भी नहीं होती। Those are good things. I like all these things. हाँ, Blueberry सुबह breakfast के साथ खाओ, like breakfast में। बहुत हेल्दी है। ब्लूबेरी स्मूदी बना लो, अभी वेदर अच्छा है आपके वहां पर, यू कैन हैव योर स्मूदीज एंड ऑल। That's true. That is true. तो अभी this is a little bit different topic. Now I know we was discussing this. Little bit different, but I think good to know still. Thanks, black grapes. I didn't know. I never tried. Me, yeah, same here with me, कमलेश जी। मैंने भी कभी मैंने खाए तो हैं, लेकिन I didn't know कि उसके benefits क्या हैं। मैं जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि आपके मदर को वो हर्पीज हो गया। हाँ, शिंगल्स हो गया, यहाँ पे शिंगल्स, हर्पिस। हाँ, हाँ। तो ये भी this is also at certain age. Lot of people get that. And low, because of low immunity. Not because of stress. स्ट्रेस करके नहीं होता? डेफिनेटली स्ट्रेस, बिकॉज स्ट्रेस तो आपकी इम्यूनिटी को वीक करता ही है। बिकॉज इफ यू आर टेकिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस, आपकी बॉडी में आपका सारा खाया पिया फ्लैट हो रहा है। बिकॉज यू आर नॉट यूटिलाइजिंग वट एवर यू आर ईटिंग। स्ट्रेस की वजह से, पहले बोलते थे ना कि चिंता चिता समान, बोलते थे ना, देर इज अ फ्रेज। इट इज द रीजन। डोंट टेक लॉट ऑफ स्ट्रेस। जो स्ट्रेस की वजह से ये प्रॉब्लम आती है, और लो इम्यूनिटी तो हो ही जाती है विद एज, क्योंकि यू डोंट टेंड टू ईट एज मच जितनी आपके यूथ में डाइट होती है। अगर किसी आज भी बड़ी एज के सामने कोई यंग बंदा खाता है, वो बड़े हैरान होता है कि हाउ कैन दे ईट दिस मच। बिकॉज उनकी अपनी नहीं रहती ना इतनी डाइट, वो बहुत हैरान होते हैं। और विद एज हमारी एक्टिविटीज में फर्क पड़ जाता है। जितना एक यंग छोटा बच्चा भी है, जो स्कूल गोइंग बच्चा है, वो दिन में कितनी बार सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ सकता है। और उसी फैमिली में अगर कोई बड़ा है, जो उसके पेरेंट्स है, वो दिन में 4-5 बार करते होंगे, जो उसके दादा दादी है, वो दिन में 2 बार करते होंगे। तो दिस इज द डिफरेंस। छोटे बच्चे की कोई चीज छत पर या ऊपर रह जाए, वो फटाफट ऊपर भागा जाएगा, पर उसकी मम्मी उसको भेजेगी।
वो आप जाएगी जब उसका दूसरा काम हो जाए, दादी तो जाएगी पूरा रात को जब उसका पूरा काम निपट जाएगा। तो बॉडी में हमारी एज के हिसाब से डाइट में भी फर्क पड़ता है। जब हमारी इतनी एक्टिविटी नहीं है, वी डोंट वांट टू ईट, हमें भूख भी नहीं लगती, बिकॉज देर इज नो एनी प्रेशर ऑफ एनीथिंग, वर्क प्रेशर नहीं है, तो डेफिनेटली आपको भूख भी नहीं लगेगी ना, आप वर्क की वजह से आप बाहर नहीं जा रहे हो, आपकी रूटीन में बस आप उठ रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, थोड़ी देर बातें बातें मारी है, लंच टाइम हो गया, तो जहां आप जवानी में 3 रोटी खा रहे थे उसमें आप 1 पर पहुंच जाओगे, डिनर का मन नहीं होता, तो इम्यूनिटी पर फर्क आना शुरू हो जाए। तो इसी करके डाइट मतलब रमा जी भी कह रही है कि इट्स ऑल्सो योर नेचर, कि लोग कहीं और बहुत सेंसिटिव होते हैं कई चीज़ों से ना, some are not. तो मेरा मतलब ये है कि all so this shingles is because of the pure I mean poor nutrition Poor and nutrition, it is all because of poor nutrition. poor nutrition. Hmm. पर कईयों को यंग बंदे को भी हो रहे हैं, जैसे I was quite young when I got mine. I don't know how I got it. यंग बंदों को स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। Stress. मेरे को स्ट्रेस होगा because मेरा हाँ, स्ट्रेस की वजह से। head on my neck and all the way up till here, all around. Very painful disease, and I am really thinking about you कि आपने न्यूयॉर्क, अपने यहाँ पर अमेरिका जैसी जगह पर कैसे इसको डील करा, because इंडिया में तो there are so many people around you, medical maids and everything, वहाँ पर अकेला ही सब चोरी कुछ होगा। करता। दैट इज द देखो जी, पहले जब इस कंट्री में जब नए नए आते हैं सारी यंग यंग फैमिलीज, ये वो, दे ऑल एक्साइटेड कि अमेरिका जा रहे हैं, ये आ रहे हैं, पर ये नहीं उनको पता चलता कि यहाँ पे कितना काम करना पड़ता है। मैं बता रही हूँ कि पे- मेरी डॉटर इसी हाँ। चक्कर में वापस आ गई कि ये मैं कैसे करूंगी, ये तो बहुत टफ है लाइफ, और Very उसी difficult life. जस्ट लोग सोचते हैं आए तुम अमेरिका चले गए हो, तुम्हें मतलब even with me in my families when I used to go to India after living here, I worked very hard. My husband, लोगों की गिफ्टों की डिमांड ही नहीं खत्म होती थी। शिफॉन की साड़ियाँ लाओ, ये लाओ, वो लाओ, उनको मिक्सी उस टाइम पे मिक्सियाँ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। सो these are the things, like we used to take, but they don't realize the life over here is very very difficult. खाना भी खुद बनाना है, ग्रोसरी भी करनी है, सब कुछ, और लोगों के पास सब ऐसे करना लगता है। है कि And वहां पर जो you can't लाइफ afford, है वो इंडिया में नहीं है। उस शुरू में जब आए थे तो we could not afford a maid, घर की सफाई खुद ही सब कुछ करते थे ना। Now बिल्कुल। we can do, we have different things, ये भी करने वाला। But that time बर्तन भी करो, ग्रोसरी भी करो, काम भी, नौकरी भी करो, घर आके खाना भी बनाओ, गेस्टों को भी खाना खिलाओ। इंडिया में जो गेस्ट आते हैं तो आराम से बैठे होते थे, दे डिडंट मूव। हमको तो ये भी चाहिए, हमको तो बेड टी चाहिए, बेड टी के साथ मट्ठी चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए, लंच में चाहिए, पूरा टी भी चाहिए। आई हैड गेस्ट, माय इन लॉज के साइड पे लोग आते थे रहने के लिए, मुझे मालूम था कि हाउ मच डिफिकल्ट टाइम आई हैड, एंड प्लस वर्किंग, देन स्मॉल किड्स, प्लस मेकिंग दम फुल। एक चीज़ गलत हो गई या कुछ हो गया तो जाके कंप्लेन इंडिया में करी, उसने ये नहीं ठीक बनाया, उसने वो नहीं ठीक। सो दैट इज द थिंग, प्रॉब्लम that people don't realize living here is good. You make money, but it's very not easy. नोटिस अब लोगों ने समझ आनी शुरू हो गई है इंडिया में भी, because they're getting good jobs over there. इंडिया में everything is available. एवरीथिंग इज इन इंडिया। इंडिया में मेरे Everything is जितना fine. भी यंग Yeah, they make जितना it भी very यंग well. क्लाइंट है, सबके घर में मेड्स हैं जो खाना भी बना रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। नाउ पीपल, इवन एक्चुअली इन इंडिया, पीपल आर लिविंग मोर पॉलिश्ड लाइफ। I agree because I went to India. Nothing. Have They just enjoy their have life. better kind of a income, business or something, you make money. Then I suggest you should not leave India and come here to live here. No one, actually, people, they do travel to Canada and US Yeah, for they should- holidays only nowadays. They prefer traveling as a tourist. if you're well off, then just stay. A lot of people realize that now, but पहले नहीं समझ होती. They all come here excited and this and that. अभी भी बहुत लोग हैं, अभी तो आपके ट्रम्प ने थोड़ी सिचुएशन चेंज कर दी है, अभी मुझे लगता है कि थोड़ा फर्क आ गया है Yeah, there is difference. स्टूडेंट वीजा में भी। Ah, तो पर हर बंदे का एम होता है कि सेटलिंग अब्रॉड। they want to. So then still थोड़ा होता है, अमेरिका में रहते हो, like the people still feel that अमेरिका में रहते हो या यूरोप में, लंदन में रहते हो तो थोड़ा होता है. But people who are good jobs and all, making money, they don't want to. I think they have कोई कमी नहीं इंडिया में। मैं तो आप बाहर रहती थी केन्या में, बट आई एंजॉयड स्टेइंग हियर। मुझे अच्छा लगता है, फैमिलीज आर नियर,
आपको अपनी पसंद का कोई भी कपड़ा चाहिए, यू कैन गेट इट हियर इजीली। हाँ, वेकेशन के लिए भी लोग आते हैं, तो मतलब things have changed. Like India में I would say things have really progressed a lot and I'm very happy about that. But like this problems like जैसे आपने shingles की बताई है ना, ये मुझे नहीं मालूम था कि diet after certain times your diet is a cause. डाइट, प्रोटीन, वन शुड टेक गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन। अभी मैं अगर आपके ही एज की लेडीज के लिए और एक चीज शेयर करती, नॉट फॉर योर एज, आई थिंक इट इज फॉर एवरी 50+ वुमेन। यू नो, वी आर नॉट श्योर हाउ मच प्रोटीन वन शुड टेक। हम अपनी डाइट में प्रोटीन का बस बोलते हैं कि दाल रोटी सब्जी बन गई, ठीक है, लंच में दाल खा ली या डिनर में दाल है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी नीड मोर प्रोटीन देन कार्ब्स। कार्ब्स वी नीड बिकॉज ऑफ द एनर्जी लेवल। अगर आपका प्रोटीन लो हो जाएगा, डायबिटीज बनेगा होएगा, और दूसरा इसका जो साइड इफेक्ट आता है, सोडियम लो हो जाता है। So Okay. many people they think कि जो सोडियम is what? सोडियम तो सॉल्ट खाने से बनता है, प्रोटीन से क्या लेना देना? नो, इट इज नथिंग टू डू विथ। आपकी डाइट में प्रोटीन नहीं जाएगा तो सोडियम नीचे आ जाएगा। तो आपको हर वुमेन को दिन में, जो अगर आप वेजिटेरियन हो तो दे शुड ईट दाल, और नाश्ते में बेसन चिल्ला या मूंग दाल चिल्ला मेरे बात या पनीर पराठा जरूर खाना चाहिए। दाल नहीं बनाने का मन, पनीर जरूर खाना चाहिए। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो मेक श्योर कि एक दिन आप चिकन, फिश, दाल, पनीर पूरा हफ्ते का मान दो कि वन गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन यू शुड टेक So you should take it every day. कुछ ना कुछ प्रोटीन की चीज रोज खाओ. एवरी डे विदाउट मिसिंग। अंडे खा रहे हो तो यू शुड हैव अंडा, एक अंडा कोई लेना देना नहीं है। अंडे खा रहे हो तो 3 अंडे की भुर्जी खाओ, अच्छा. ठीक है, भुर्जी खाओ या 3 बॉइल्ड एग खाओ। डोंट मिस योर प्रोटीन, क्योंकि अगर हम प्रॉपर हर एज की डाइट के ही हेल्प करते हैं, विद एज वी नीड एवरीथिंग। उस टाइम ये अगर भूख नहीं लगती, ठीक है, मैं बोलती हूँ एक एज के बाद आप ज्यादा चूजी नहीं रह जाते भूख के लिए। जैसे एक उम्र होती है कि बहुत भूख ही लगती रहती है, आप 2 टाइम भी खा रही हो ना, तो मेक श्योर तो 2 टाइम का फूड बहुत अच्छा हो। Okay, ठीक. उसमें कॉम्प्रोमाइज मत करो, सैंडविच मत खा लो कि बस सैंडविच खा लिया, मेरा पेट भरने के लिए नहीं खाओ। अपनी यूज योर फूड एज अ मेडिसिन, इसी ने काम आना है। अगर बाई चांस आप बीमार भी हो जाते हो तो आपका खाया पिया उस टाइम बोलता है। और इनफैक्ट जल्दी बीमार भी नहीं होते अगर आपका प्रोटीन लेवल अच्छा है, आप खा अच्छा रही हो। आलमंड्स रोज लो, फ्रूट्स रोज खाओ, दही दूध रूटीन में लो, पर रूटीन बना लो। मेक योर ओन चार्ट कि ये मेरी डाइट है, हफ्ते की आई हैव टू ईट, आई हैव टू कंज्यूम दिस मच। So every day के लिए मतलब like a daily खाने के लिए one should always have protein. आप जैसे कह रहे हो, जैसे if you are vegetarian then दाल में या पनीर में खा सकते हो. रोज देखो, आप यू आर पंजाबी टू, पंजाबियों के घर में तो रोज दाल बनती है। अगर वेजिटेरियन फैमिली है तो वो दाल की पहले तो जरूर बनती थी। अगर आप लोगों का न्यूयॉर्क में आके सिस्टम चेंज हो गया तो वो वापस ले आओ। हाँ, क्योंकि अगर आप या तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप नॉन वेज भी फिर रोज बनाओ। चिकन, आप सबके घरों में ओवन्स होते हैं, सब चीजें हैं। चिकन ब्रेस्ट अपने लिए फ्रीजर में रखो मैरिनेट करके, और आपको पता आना चाहिए कि ये मेरा रोज का पोर्शन है। साथ में थोड़ा सैलेड काटा और चिकन ब्रेस्ट लो, एंजॉय योर डिनर। ये आपका डिनर हो जाएगा। लंच में एक दाल बॉईल करना एक बड़ा काम नहीं है। आपके पास हाउस हेल्प आती है, यू कैन टेल हर के मेरे लिए 2 दिन की दाल बॉईल करके चली जा। उसको आपके वो बैलेंस कर देगी, फ्रिज में कहीं भी रख देगी। मेक श्योर पनीर आजकल घर में भी लोग बोलते हैं कि बनाओ, वो भी 2 मिनट लगते हैं पनीर बनाने में। दही कोई बड़ी चीज नहीं है, दही तो आप आराम से बस एक बॉल निकालो, उसमें इतना प्रोटीन है। तो मेक श्योर दैट यू आर ईटिंग एवरीथिंग। किसी दिन दाल नहीं मन तो नॉनवेज खा लो, नॉनवेज का नहीं मन तो पनीर खाओ। बॉडी में फ्यूचर में मतलब ये बोले कि डाइट की वजह से प्रॉब्लम आए, वो नहीं होनी चाहिए। ना ये प्रोटीन बॉडी में लाइक कितनी खानी चाहिए? वैसे जो जिम गोर्स होते हैं उनको तो बोलते हैं 100 ग्राम्स, ठीक है। अब 100 ग्राम पूरा नहीं होता, पर अगर बीइंग अ वुमन यू शुड ईट 47 ग्राम्स। तो जैसे ऐसे तो पता नहीं चलता, जैसे लेट्स से यू हैव अ चिकन पीस ऑफ चिकन. आपको मैं बता देती हूँ। ऐसा आप क्वेश्चन आप कैसे 100 अपने ग्राम माइंड में? चिकन ब्रेस्ट खाओ, 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट खाओ, चिकन ब्रेस्ट, ओके. 100 ग्राम्स। अंडे बना रही हो तो 2 अंडे बना लो।
अपने लिए। उसमें 40 ठीक है, 47 ग्राम हो जाएगा 2 अंडे में। पूरे दिन का हो जाएगा ना। 2 दिन दो अंडे में तो मुश्किल से आपको 5 ग्राम या 7-8 ग्राम मिलेगा। 2 अंडों में। 2 अंडों में 8 ग्राम मिलेगा, ठीक है। और फिर दाल के बाउल में आपको मिलेगा। तो 47 तक आप बहुत ना भी पहुंचो, 30 तक भी पहुंच जाओगे तो प्रोटीन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पनीर जैसे खाते हैं, मेरे घर में आती है, मेरे मतलब आई एम फॉर्चुनेट टू हैव हर टू कम हेल्प मी। सो शी कम्स ऑन फ्राइडेज, तो काफ़ी चीज़ें बना देती है मेरे लिए। देन आई मेक सम मोर माई सेल्फ सप्लीमेंट करने के लिए। तो उसमें पनीर भी बनाती है वो, बना के घर जाती में बना जाती है, है, दही भी बनाती है वो। सो बहुत अच्छा। दैट्स अ गुड गुड प्रोटीन, because she knows I like पनीर, तो पनीर काफ़ी सारा बनाती है। तो पनीर के जो होते हैं ना क्यूब्स होते हैं, छोटे छोटे क्यूब्स बनाती है। तो कितने, अबाउट हाउ मच शुड वी ईट? आपको एट अ टाइम 100 ग्राम्स तो खाना चाहिए ना। वही ना, मैं 100 ग्राम्स। हाँ, उनको तो वैसे ही शी मेक्स द पनीर, मैं कहती हूँ डोंट मेक एनी सब्जी एनीथिंग, तो वैसे ही बना देती है, रख देती है। तो उसको तो मैं, पनीर आप मार्केट से लाते हो रेडीमेड, नहीं नहीं, वो बनाती है। मिलता भी है, मार्केट में भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आई और वो घर में दूध फाड़ के बना देती है। बनाती है वो। तो समटाइम आई टेल हर डोंट मेक मी एनी सब्जी, जस्ट मेक द पनीर। उसको फिर मैं थोड़ा सॉटे करके ना, खुद ही थोड़ा थोड़ा मसाला डाल के, यहाँ पुट सम ऑन द पैन, आई सॉटे इट। आई लाइक टू ईट लाइक दैट टू, गरम करके ना थोड़ा सॉटे करके खा लो। हाँ, आई ईट दैट ऑल्सो। So that's the thing. Diet is, I think everything depends on the diet. What you're eating. That's why we need people like you to guide us. Dietitian क्यों क्यों हम जाते हैं, इसी के लिए जाते हैं ना, कि पता चले क्या खाना चाहिए। वैसे तो everybody eats something ये वो, लेकिन proper तरीके से I think everybody should go consult the dietitian. डेफिनेटली मैं हमेशा सबको यही बोलती हूँ कि अगर आप स्टक हो, हम लोग फालतू में कितना ही पैसा लगा देते हैं बाहर नाइट आउट्स पे, डिनर्स पर। हेल्थ के लिए पैसा लगाने के टाइम हम सोचते हैं कि ओके वी विल रीड दिस थिंग इन गूगल, और वो गूगल अगर सारी चीजें बता रहा होता तो आज की डेट में तो डॉक्टर्स बेचारे तो घर में बैठ जाएं। देयर इज नथिंग देयर। वो आज भी लोग एमबीबीएस क्यों कर रहे हैं, देयर इज अ रीजन Yeah, कि नहीं, लोग एमबीबीएस कर रहे हैं। आप वैसे तो बात करें, मैंने अभी किसके गई थी प्रोग्राम में, तो वहाँ पे kind of a doctor type, or I don't know what he was, and he was there, and he said अभी जैसे रोबोट टाइप, वैसे ही said wait, हाँ हाँ, वो भी कहते हैं शुरू हो गया। जैसे कोई हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आई मीन डॉक्टर के ऑफिस में जा रहे हैं, तो पहले ग्रीट करेगा वो रोबोट टाइप, पूछेगा व्हाट इज योर मेजरमेंट्स, व्हाट इज दिस, क्वेश्चन आंसर करेगा एंट्रेंस पे। तो मैं कहा ये लोगों की जॉब कैसे, ये जो लड़कियां काम करती हैं रिसेप्शन में, दीज जॉब्स आर गोना बी गोइंग अवे। किसी का कोई काम नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ देयर इज। आप ये जितना भी है, रॉबर्ट भी जो बता रहा है वो उतना ही बोलेगा जितना उसे सिखाया गया है। यस, सेम चैट जीपीटी एआई भी उतना ही बताएगा जितना वो ढूंढ सकता है। पर जो नई नई थ्योरीज हैं, जो किसी का ब्रेन है, जो उसके ब्रेन के उसमें नॉलेज है, वो वो कोई बदल नहीं सकता। और हर बंदे की अपनी नॉलेज है। आज आप ये देख ले बीना जी, आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद यू। जो आप कर रहे हो वो हर कोई नहीं कर सकता। आपके थ्रू कितनी दुनिया को डिफरेंट डिफरेंट लेसन जा रहे हैं, कभी डाइट से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड। कितना म्यूजिकल प्रोग्राम आपका कितना अच्छा जा रहा है। म्यूजिक तो लोग वैसे भी यूट्यूब से भी सुन सकते हैं, बट पीपल दे एंजॉय द कंपनी। आप लोगों का बोर्डम दूर करते हो। मैं एंड ट्राई आई रियली लाइक योर फ्रेंड कमलेश इज ऑलवेज देयर। आप सोचो उनको कितना अच्छा लगता होगा। शी इज राइट देयर नाउ। तो ये वो चीज है जो आपको कभी टीवी में या मीडिया में या मूवीज में भी नहीं मिलती। इट इज द डिस्कशन ऑफ हेल्थ नॉलेज किसी ना किसी रीजन से। तो वो ये चीजें कोई आपको यूट्यूब में ढूंढने वालों को यूट्यूब में भी बहुत मिल जाता है, बट एवरीवन डजंट एंजॉय एवरीथिंग। दैट्स ट्रू। आपने म्यूजिकल की बात करी है, हमारा म्यूजिकल प्रोग्राम भी परसों है। यहाँ पे टू ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग। एक अभी आई हुई थी यहाँ पर, नीलम जी, नीलम लांबा वाज हियर। एनीवे, रमा जी कह रही है सॉटे, अच्छा पनीर की बात कर रहे होंगे ना, सॉटे इन बटर एंड स्प्रिंकल लाइट मसाला विद सम लेमन। मैं ऐसे ही कुछ करती हूँ रमा जी, मैं भी
पैन के ऊपर लेके थोड़ा बटर डाल के पनीर को ना, पनीर के जो टुकड़े होते हैं, ओके, मैं कहती हूँ डोंट मेक एवरी टाइम मटर पनीर, कभी साग पनीर। मैं कहूँ तंग आ गई हूँ मैं, ऐसे पनीर बना के रख दे। हाँ I take a small piece and put it on the pan and saute करती हूँ उसको, like प्याज के साथ भी कर सकते हो, you can do onion, you can do like रमा जी कह रही हैं saute in butter and put some light masala on it and तब खा लो, अच्छा लगता है, वो भी मैं करती हूँ। अच्छा लगता है। बेल पेपर्स बहुत अच्छे होते हैं। इट इज वेरी गुड, गुड फॉर ऑक्सीजन टू योर, गिव्स ऑक्सीजन टू योर ब्लड। ये स्किन के लिए बहुत अच्छी है। तो आप पनीर के साथ बेल पेपर्स का कॉम्बिनेशन करो, इट इज हेल्दी। या मैंने समटाइम इन द रेस्टोरेंट में भी दिखाते हैं पनीर पेपर अनियंस डाल के ना सॉटे करके देते हैं, वो भी होता है। तो दैट्स द थिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम टुडे। आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट, thank you, I really have to thank you so much because your mom is not feeling well, but you took some time to come to our program and I'm so grateful to you. Never say no. She's one lady you can ask her, मोना जी को जब भी पूछो कभी ना नहीं करेंगी कि मैं बिजी नहीं हूँ। नहीं, इट इज द रिस्पेक्ट फॉर यू। आप, मुझे अच्छा लगता है कि यू आर लिविंग, यू आर डूइंग समथिंग फॉर अदर्स। आपके प्रोग्राम से कितनी चीजों की लोग भी समझते हैं। और आई ऑलवेज टेक एवरीथिंग प्रिविलेज, मुझे अच्छा लगता है। नॉट ओनली दिस, मेरे पास जो क्लाइंट्स भी आते हैं, आई ऑलवेज टेक देम अ प्रिविलेज, दे हैव गिवन मी द ट्रस्ट। तो Yeah, लाइफ को किसी भी चीज को हल्के में या सस्ते में नहीं लेना चाहिए। भी जो मिल रहा है ना, सबको नहीं मिल रहा था। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक कहा। So that's the thing, that's what I'm saying, that's, you're a very good person, I know that, because like I said, कईयों को मैं पूछती हूँ, पहले जानते थे नहीं मैं बिजी हूँ, मैं ये जब भी पूछो आई एम बिजी, बट यू ऑलवेज टेक द टाइम, लाइक एवरीबॉडी इज बिजी, ठीक है ना? एवरीवन इज अपना बिजी और बताना है। अच्छा लगता है। और हाँ, आप ये सोचो कि इसमें क्या चला गया, अगर ये मेरे यहाँ पर तो इंडिया में रात के 9 बज रहे हैं, और हम मेरे, और ये जो डाइट है, दिस इज माई फेवरेट प्रोफेशन जो मैं कर रही हूँ। दिस इज नॉट ओनली फॉर अर्निंग द मनी, आई एंजॉय माई वर्क। और इससे रिलेटेड बातें करना मुझे बहुत पसंद है। I know that. Still, taking the time out and your mom is not feeling well and you took the time, you usually go to see her or you time take talk to her. But I wish her all the best that she recovers soon. I hope she gets, थैंक्स सर, I really थैंक्स do, I really pray for her and she gets well. Because I know it's kind of painful. इट इज वेरी पेनफुल, ये या और शी भी इज रियली सफरिंग अ लॉट। वेरी अनकंफर्टेबल, क्योंकि वेदर भी गर्मी होती है तो फिर और भी होता है। अभी तो चलो एसी चल रहा है, उनका तो उल्टा ठंडी लगती है। और इंडिया में इतनी बारिश हो रही है कि एसी में और भी ज्यादा चिल्ड फील होता है। It's true. तो बट वेदर इज नॉट द इशू, बट इनसाइड शी फील वेरी लो। दिस पेन इज रियली समथिंग डिमोटिवेट करती है उनको। So she needs company, people to come and talk, like थोड़ा। एंड यू नो, दिस इज द ह्यूमन नेचर। जो हमारे बच्चे होते हैं ना, वेन एवर यू सी देम इन फ्रंट ऑफ अस, हमारी आधी से ज्यादा दर्द चले जाती हैं। आई एम अ डाइटिशियन, मैं ये चीजें बस इसलिए नहीं समझती कि आई एम अ मदर टू, बट आई बिलीव कि आपकी जो हीलिंग पॉइंट योर किड्स इज देयर। That is true, that is true. दैट इज द ट्रू। अपने बच्चों को देखकर जो जान में जान आती है ना, वो किसी को देखकर नहीं आती। 100%. तो तो मैं यही सोचकर चली जाती हूँ, क्योंकि वो शी हैज गिवन बर्थ टू मी। Yeah, तो yeah, no. She feels much better. अब देख के थोड़ा माइंड थोड़ा चेंज हो जाता है ना, बट अभी थिंक। डेफिनेटली ये जो चीजें, ये मैं तो यही समझती हूँ कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने भी एक्सपीरियंस करा है कि अपने बच्चों को देखकर आपको बहुत अच्छा लगता है। तो हम अपनी मदर के टाइम ये कैसे भूल सकते हैं? उन्हें भी तो वैसे ही अच्छा लगता है ना। और ये हीलिंग है, दिस इज द हीलिंग। रेतली जैसी चीज है ये। आई एग्री, बिल्कुल ठीक बोला आपने। व्हेन यू सी द फैमिली क्लोज, somebody you love, your children, हाँ, it gives you a really a big boost in your energy, in your गुड बूस्ट। और थोड़ी देर के लिए वो अपनी दर्द भूल जाते हैं, हाँ शी हाँ, फील बिल्कुल हैप्पी। तो इवन पास रहने का इतना फायदा तो होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, आई एग्री। सो आई थिंक आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड कि मेरे बच्चे ज़्यादा दूर नहीं है। वन इज़ लिटिल बिट फार बट नॉट दैट फार, बट ठीक है। इट मेक्स अ बिग डिफरेंस, यू आर राइट, दैट्स अ बिग हीलिंग थिंग। तो अब हम लुकिंग फॉर द नेक्स्ट प्रोग्राम कब करेंगे, अभी बात करेंगे उसकी भी, नेक्स्ट टॉपिक का कौन सा होगा। बट टुडेज टॉपिक वाज अमेजिंग एंड रियली वेरी गुड इन्फॉर्मेशन आपने दी है। एंड आई एम रियली रियली, एंड समबडी मिस्ड इट इन द बिगिनिंग और कुछ, तो हमारा तो प्रोग्राम चलता रहता है, दे कैन कम एंड लिसन टू इट अगेन एंड I will be in touch. Mona ji, thank you so much. Once again, वेलकम। I want to tell everybody, don't forget this coming Friday.
that we having Shali ji and Neelam ji and myself will be singing some मुकेश के गाने गा रहे हैं. मुकेश का उसको थोड़ा importance दे रहे हैं this Friday. So it's going to be all about him. So please join same time, same place. Thank you so much, Mona ji. Also try to join if you can. सुनना Sure. हमारे गाने. And Okay जी. जी, take care. Thank you. Sure. जरूर सोनाली. Okay जी. Bye bye. Bye-bye. Thank you. Okay, here you go. Thank you.